आज बॉलीवुड की मशहूर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का प्रार्थना सभा था। 23 दिसंबर 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। श्याम बेनेगल की कहानियां और उनकी सिनेमा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। आज उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए उनकी प्रेयर मीट में कई मशहूर चेहरे शामिल हुए। इसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी, कुणाल कपूर, कृति सोमैया, उर्मिला मातोंडकर और कई और जाने माने लोग मौजूद थे। ये सभी लोग उनके सफर को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देने आए थे। श्याम बेनेगल का योगदान सिनेमा की दुनिया में कभी नहीं भूलने वाला है। उनकी फिल्म्स जैसे अंकुर, भूमिका और मंथन ने हमारे समाज को नई सोच दी और हमें सिखाया कि किस तरह सिनेमा एक अहम हिस्सा हो सकता है हमारी जिंदगी का। Talking about what Shyam meant to me and how much he did for me and what I owe him and how his filmic vision affected the landscape of filmmaking in the country and his generosity and his kindness. These are all givens. There is a line by Khalil Gibran in his book, The Prophet, where he says, "Work is love made visible." And if you cannot work with love, then it's better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms from those who work with joy. These words seem like they were written for Shyam. I've always believed that death is the most unimportant part of life, and ironically the only inevitable part. What is important is what you do with the time you have. And it's undeniable that Shyam used every single moment of his life, every breath, every iota of energy in a creative pursuit of some kind or the other. And something tells me he's not through. Because I can see this wonderful film being made in the big studio in the sky with Shyam directing and assisted by his trusty assistants Girish Kanekar, Mandeep Kakkar, Khinchpal Kasturi, which is the name I owe to Prahlad, and Ashok Mehta is behind the camera. Vanraj Bhatia is doing the music. The screenplay is written by Vijay Tendulkar, only slightly ruined by Dubeji's dreadful dialogue. And of course it stars Girish and Smita and Amrish and Om, with guest appearances by Sadhu Meher and Priya Tendulkar. I feel kind of wistful I'm not in that film. I suppose I should be grateful for small mercies. But there are a couple of passages I would like to read to you from The Prophet, which may offer some solace to my foster mother, Neera, and my foster sister, Priya. And a woman said, "Speak to us of joy and sorrow." And he answered, "Your joy is your sorrow, unmasked. And the self-same well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears. And how else can it be? When you are joyous, look deep into your heart and you will find it is only that which has given you sorrow that is giving you joy. When you are sorrowful, look again in your heart, and you will find that you are weeping for that which has been your delight. Some of you say joy is greater than sorrow, and others say, nay, sorrow is the greater. But I say unto you, they are inseparable. Together they come. And when one sits alone with you at your board, remember that the other is asleep upon your bed. Just as the heart of a fruit must break, that its heart may stand in the sun, so must you know pain. And could you keep your heart in wonder at the daily miracles of your life, your pain would not seem less wondrous
than your joy. And you would accept the seasons of your heart, even as you always accept the seasons that pass over your fields. And you would watch with serenity through the winters of your grief. It was just a fortnight ago that I wrote a 250 pages book on the Maestro Shyam Benegal, which has about 55,000 words in it. But believe me, this morning when Neeraji told me that I have to speak here today, I did not have a word. I did not know what to say here. So I thought it's better that I make some notes and then will come in front of you. I don't know where to begin and talk about which Shyam Benegal. Shyam Benegal, the filmmaker, Shyam Benegal, the teacher, philosopher, Shyam Benegal, the guy who not only made films about villages and Mofussil towns, but also helped little villages and these little towns to get roads and schools and hospitals and water and electricity. Shyam Benegal, the lawmaker, who in his 6 years in Rajya Sabha tweaked the Constitution of India, or Shyam Benegal, the storyteller, who after retiring from the Rajya Sabha made a 10-hour long form on the making of the Indian Constitution. Shyam Benegal, the chap who fought battles for the rights of the landless laborers in the villages, or Shyam Benegal, the man who fought to get dignity to the LGBTQ community. Shyam Benegal, the gentleman, which is becoming a rarity in our society today. I think the people in this August gathering all know about Shyam Benegal, the filmmaker. At times the writer, at times the producer, but all the times the director of 24 feature films that he made in his life, 2 feature-length documentaries, scores of short films, and 700 plus ad films. Still, one thing I would like to emphasize here, when I came to Bombay and joined the film industry, when Shambhavu was making the discovery of India in 1988, one refrain that I often heard in the mainstream industry was that, "Arey, Shyam Benegal वो फिल्में इसलिए बना पाता है क्योंकि उसको तो भारत सरकार पैसा देती है." And when I reminded them that, "Sir, what are you talking about? Shyam Benegal made his first 8 films with the producers like Blaze and Filmwalas of Shashi Kapoor ji. It was only in his 9th film, Arohan, for which the Marxist government of West Bengal supported him in making that film." And people used to be surprised, "अच्छा ऐसा?" तो ये एक नोशन उनके बारे में क्रिएट कर दिया गया था इस शहर में, इस इंडस्ट्री में. As a teacher and philosopher, he was matchless. आप उनके साथ घंटों बैठ सकते थे. जो उपनिषद जो हमारे हैं, और उपनिषद को का अर्थ होता है कि गुरु के चरणों में बैठना, तो आप उपनिषद के साथ उनके चरणों में घंटों बैठ सकते थे. चरणों में तो बैठने नहीं देते थे, उनके सामने की कुर्सी पे. और दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं था जिसपे कि वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान न दे दें और आप कुछ वहाँ से अमीर होकर न निकलें उनके पास में 2-3 घंटे गुजार के. His fast and vast reading was an abiding addiction with him, और वो नशा उनका जाते जाते भी नहीं गया. सारी किताबें त्याग देने के बाद में, सारी किताबें जनता के लिए एक लाइब्रेरी में दिल्ली में दे देने के बाद भी वो नशा नहीं गया. और जो नई किताब की खुशबू का जो नशा था, और तरह तरह की नई चीज़ें जानने का जो नशा था, चाहे वो नए कॉन्सेप्ट्स हो, नई टेक्नोलॉजी हो,
नई बातें हो, नई चीज़ें हो, नई किस्म की कहीं कुछ पॉलिटिकल घटना, वो उनका नशा कभी नहीं उतरा। मेरे फैमिली में एक जोक था, जब भी मैं बिना काम के श्याम बाबू के साथ जाके बैठता था, ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे, अगर काम नहीं चल रहा हम लोगों का किसी फिल्म पे, तो मैं थर्सडे चला जाता था उनके साथ ही बैठ के उनको सुनता रहता था। तो उस दिन मैं फ़ोन पे अपनी फैमिली को कहता, क्या है भाई आज का प्रोग्राम? आज मेरा यूनिवर्सिटी का दिन है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो श्याम बेनेगल वाज दैट यूनिवर्सिटी where, like American university, you could go to any department that you like to listen to the lectures. You did not have to go to the sociology and psychology because they were registered subjects like India. तो उस यूनिवर्सिटी में जाना और बैठना जो है एक अलग ही कमाल की बात हुआ करती थी। 4 days ago, when we were at the funeral parlor to bring him to Shivaji Park crematorium, an unknown man came in and said, "Are you the family?" We said, "Yes, we are the family." And he told us that he had heard the news about 7 o'clock the night before, and he rushed from a village 40 miles from Tirupati, somehow traveled to Tirupati, somehow was able to take a flight in the morning and landed there before even the family could properly come there. और हमने उनसे पूछा कि भाई आप इतना क्यों हड़बड़ा के भागे, आप क्यों आए? बोले हमारा पूरा गांव रात भर सोया नहीं है, और हमारे गांव में एक चौराहा है श्याम बेनेगल के नाम पे, हमारे गांव में एक अस्पताल है श्याम बेनेगल के नाम पे, हमारे गांव में एक सड़क है श्याम बेनेगल के नाम पे, और पूरे गांव ने तय किया कि मुझे जाना चाहिए, और मैं, सुरेंद्र नाम था उनका, और मैं यहाँ भेजा गया हूँ, पूरे गाँव को मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले मैं स्टूडेंट था हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में, जब मैं उनसे मिला और वो एमपी थे, और उन्होंने हमारे गांव के लिए अपने एमपी लाड से पैसा दिया, जिससे आज हमारे गांव में पानी आता है, हमारे गांव में सड़क है, और हमारे गांव में एक अस्पताल बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द मैन। आई नेवर सॉ हिम सेइंग नो टू. Sometimes these people from the different villages and small towns used to come to the office when we were working. But he'll meet them. They usually came in delegations. He met them, and more often than not, granted them whatever little things that they needed. I remember especially it was so touching. There is a district adjacent to this town of gold and glitter and glamour where you and I live. This district is called Palghar, and you know Palghar is full of the Warli tribals. And you also should know, if you don't know already, that about 8 years ago, about 600 children used to die there every year because of malnutrition. Next to Bombay, the city of gold. And Shyam Babu especially took interest in going to their villages and trying to do things that they could fight this starvation and let their children not die. This was the man Shyam Benegal was. Friends, you know that in our film fraternity, when people are nominated to Rajya Sabha, most of the time they don't attend the parliament. Even if they attend the parliament, they don't utter a word. They're not interested in what is happening. Leave apart asking some informed questions and leave apart tabling a bill. Two of the exceptions are sitting here with us today. First, Shabana Azmi, and then Javed Akhtar Sahab. But very much like them, because Shabana ji preceded him to the Rajya Sabha, Shyam Benegal was one man whose dharma was to attend the parliament whenever it was in session. He did not miss a single session. Most of the time you have to be a silent spectator, because nominated लोग तो हल्ला गुल्ला मचाने का मजा भी नहीं लेते हैं। तो वो पार्लियामेंट जाते थे अपना धर्म समझ के, and he was one of the rare people who had tabled a big bill to bring succor to the landless laborers
and get them some small parcels of land. And this was unheard of till that point of time. Nothing happened with that bill, but at least he did his karma. At least he did fight for them. Similarly, both in the High Court and in the Supreme Court, with a few of his friends, he filed a clutch of petitions to get the LGBTQ community the dignity and to remove the tag of a criminal from their lives. देखिए, मेरी शुरुआत मंडी फिल्म से हुई थी, वो जो वहाँ दिख रही है ना, तो मंडी फिल्म की ये मैडम थी, मैम इधर ही ना, ये उसमें श्याम बाबू ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और शबाना जी जो थी सबसे हमारी प्रिय सीनियर मोस्ट थी, और एक उनके साथ फिल्म करी थी। सीनियर मोस्ट बोल के आपने मेरी एज की ऐसी की तैसी कर दी। एक श्याम बाबू के साथ फिल्म और की थी जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर। अब श्याम बाबू नहीं है ना, तो उनका ये सब परिवार है, तो अब मैं कह रही हूँ वाकई में उनकी फैमिली कहलाएगी वेलकम टू सज्जनपुर। इतने सज्जन वो थे, और जो आज बिजौनदा ने जो फूलों से डेकोरेशन किया है, जो खुशबू पूरे ऑडिटोरियम में थी, उसके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि गोह की खुशबू की तरह फैला था मेरे चारों ओर, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। तो बहुत बहुत मैं उन्हें मिस करूँगी। और आज से हमारी बॉर्दी जो है वो शबाना है, हम सबकी बॉर्दी शबाना। इतना प्यार दिया, इतना सिखाया, सभी लोग कह रहे हैं, तो उन शब्दों को रिपीट नहीं कर सकते, पर जो प्यार दिया है, जो मौका दिया, एक ही मुझे ना उनसे शिकायत रहेगी, क्या मेरा हर शॉट सनसेट के टाइम पे लिया। और दूसरी बात, मेरी गलती को शबाना पकड़ती थी, पकड़ के ये नहीं कि ठीक कर दे, फिर कहेंगे देखो शाम कितना अच्छा कर रही है। झूठ वो कहते थे नहीं, टेलीविजन पर से झूठ बोला जा रहा है। फिर वो कहते थे नहीं शबाना ये गलत कर रही है, और ठीक है गांव की लड़की के लिए ठीक है। बस ये हमारी बॉर्डी है, और इनकी प्रेरणा से जो हमें परिवार मिला है, उस उनके आशीर्वाद से हम आगे चले। जब छोटी सी थी तब उनसे मुलाकात हुई थी, और जब 18 की उम्र में उनके साथ पहली फिल्म की थी, और उसके बाद ढेरों फिल्में की। तो कोई पूछता है तो आपने क्या सीखा उनसे, किस तरह नॉन जजमेंटल होकर, किस तरह खुद पर यकीन रखकर काम करना है, ये उनसे सीखा। क्योंकि जितना यकीन, जितना ट्रस्ट उन्होंने हम पे दिखाया है, पूछा ये रोल कर लोगी, हाँ जी कर लो, ये तुम्हारा, ये नहीं पूछा कैसे करोगी, कैसे। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते थे अपने एक्टर्स में, आज अगर हम यूँ सीना तान के खड़े होते हैं कि हम अच्छे कलाकार हैं, तो ये पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस उनसे हमें मिला है। और जिस तरह की दिव्या भी कह रही थी, हम सेट पर सब साथ मिल के काम करते थे, हमें महसूस ही नहीं होता था कि हम काम कर रहे हैं। किस तरह हमें लाइनें याद होती थी, हम गाने भी गाते थे। एक बार डांट भी पड़ गई थी, हम हरी भरी की शूट कर रहे थे, और रात को जिस तरह 9 से 6 बजे तक शूटिंग करते थे, फिर बहुत वक्त होता था, हम गाने वाने गाते थे। तो एक दिन सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट पे मिले, कल बहुत हंगामा हुआ है होटल में, कंप्लेंट्स आई है कि शाम बेनेगल के एक्टर्स बहुत शोर मचा रहे हैं, गाने गा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, ऐसा कोई करता है, तमीज़ है ये। तो हम सब चुपचाप खड़े हुए। जब हो गया, फिर थोड़ी देर में 2 मिनट बाद कहते हैं, टेल मी समथिंग, डिड यू ऑल एंजॉय योरसेल्फ? आई सेड यस वी डिड, ओह गुड लेट्स गो एंड शूट। सो उनसे माहौल हमेशा अच्छा बना रहता था। अगर एक फ़ोन भी उठा दो तो पहली आवाज़ जो उनकी आती है, शाम बेनेगल, यस माय डियर राजेश्वरी, हाउ आर यू। ये हम मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे। मेरा पहला पोस्टर है अंकुर का, और ये केम्स कॉर्नर पे पहली बार लगा था, और लोग बोलते थे ये तो एनिसिन का एड है, ये किस तरह की चीज़ है, ये क्या है ये। मैंने कहा इससे आपको सेंस नहीं होता कि ये अलग तरह की फ़िल्म है। और फिर जाके देखिए कि कहाँ कहाँ तक ये पहुँची है ये फ़िल्म, और कौन से दरवाजे खोलें किस किस के लिए। श्याम बेनेगल मेरे गुरु थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई उनको गुरु कहे, वो बराबरी में बिलीव करते थे, वो मेरे मेंटर थे। उनके साथ रहने से मैंने सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं सीखा, ज़िंदगी के बारे में सीखा। छोटी छोटी उदाहरण, वो कभी लेक्चर नहीं देते थे, मगर उनके अतराफ़ रहकर उनकी खुशबू आप में ऐसी जाती थी कि आपके पूरे जो है ना, वो मट्टी आपकी गीली हो जाती थी, जिसमें आप इतने सेंसिटिव हो जाते थे कि अंकुर उसमें फूटेगा ही सही है। वो मेंटर भी नहीं कहने के हक़ में थे, वो मेरे दोस्त थे, और उन्होंने वो जगह मेरे लिए बनाई।
देखिए, इतनी सारी फिल्में हमने साथ की, लेकिन फिर वो मेरी हर फिल्म देखते थे, और जब उनको फिल्म अच्छी लगती थी तो एक आध बार फ़ोन करते थे। उन दिनों में लैंडलाइन था, मोबाइल नहीं था, तो फ़ोन फिर करके छोड़ देते थे। अगर उनको मेरा काम पसंद नहीं आया, वो 3-3 बार फ़ोन करते थे। तब तक फ़ोन करते थे जब तक मैं फ़ोन पे ना पहुँची, और फिर मुझे बोलते थे कि देखो, तुम्हारे काम में मुझे यहाँ ये ख़ामी लगी। देखिए, सिर्फ कोई आपको सच्चे दिल से अगर चाहता है और आपकी कदर करता है, सिर्फ वो ही ये कर सकते हैं। और मैं उनको हमेशा इसी नज़रिए से देख रही हूँ कि वो मेरे दोस्त थे, और वो मेरी ज़िंदगी में ना आते तो आज मेरा जीवन, मेरा करियर एक बिल्कुल डिफरेंट रुख पर होता। वो फिल्म मेकर्स जो श्याम बेनेगल की वजह से उनके सिनेमा को बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इनसे भी बात करिए। सुधीर जी आइए। सर के साथ मैंने सिर्फ एक पिक्चर की, पर जिस तरह उन्होंने उस फिल्म के लिए मुझे बुलाया और जिस तरह बात की, उसके बाद तो मैं उनकी इतनी बड़ी, वैसे भी उससे पहले उनकी इतनी फिल्में देखी थी, एंड आई वाज सच अ बिग फैन ऑफ हिज एनीवे, ऑफ हिज वर्क, एंड आई जस्ट कम टू बॉम्बे, एंड मुझे एक फ़ोन आया कि वो मिलना चाहते हैं, और मैं गई। उन्होंने मेरा थिएटर का काम देखा था, एंड मैंने फ़िल्म पहले कभी नहीं की थी। मैं बिल्कुल स्पॉइल हो गई, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट पिक्चर श्याम बेनेगल के साथ थी। सो उन्होंने बुलाया और मुझे कहा कि ये है कहानी, और ये है रोल, और ये है वो, और ये है वो, और वुड यू डू मी द ऑनर ऑफ डूइंग दिस रोल। और इतने बड़े शख्स जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्म्स बनाई थी, that he should have that grace to say, will you do me the honor? मैं वो कभी नहीं भूलूंगी. It was one of the most gentleman-like and most decent things, and I can't tell you how much fun I had working with him. जैसे मैंने पहले भी कहा है, he was not just extremely talented, he was a highly intelligent man, very well-read man, very erudite man, who treated everyone. मैं करिश्मा के साथ काम कर रही थी, सो करिश्मा बाहर नहीं आती थी, पर उसका टेबल पे वही जगह थी जहाँ हम सब बैठते थे। सोचो, सेट के लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग उसी एक टेबल पे बैठते थे। सो ही वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ मैन, एंड बहुत, मतलब सेट पे बिल्कुल क्लियर, डांट भी देते थे कि क्या चाहिए मुझे, पर बहुत क्लियर उनको क्या चाहिए था एक्टर से, और वो खींच के निकालते थे, जो आपको पता भी नहीं था आपके अंदर था। और पर उसके बाद बहुत वार्म, बहुत फ्रेंडली। मैंने उनके साथ बहुत फिल्में नहीं की, but after that I used to meet him a lot. He used to come and see my plays also, and he was always very encouraging. He was a very supportive, encouraging, passionate, interested in everything kind of man. Very exceptional man. He will be much missed and is much loved. और मुश्किल है, इतना कुछ कहा जा सकता है। एक 17 साल का, 18 साल का लड़का था कि छोटे शहर में उसने निशान देखी थी, और फिर समझ में आया था कि इस मीडियम में जाना चाहिए। उसने ना सिर्फ सिनेमा का हमको एक तरीका सिखाया था, ज़िंदगी जो जी रहे थे उससे भी अवगत कराया था। जो एक चेहरे जो होते हैं, आम चेहरे, Shyam Benegal taught everyone that there was a poetry in the ordinary face, that there was a poetry in ordinary lives, that you could tell a story which is not spectacular but be very moving. बहुत एक दो तरफा नज़रिया था हर फिल्म में एक उसका एक कभी भी इमोशनल भी बहुत थी, लेकिन उस इमोशन में डूब के सेंटिमेंटल नहीं थी। उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी था एक तरीके से। वो ज़िंदगी को देखते थे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और कहीं एक लेमेंट था, एक गम था साथ में उनकी फिल्मों में, कि जितनी बेहतर दुनिया हो सकती है, जितनी मुमकिन है, उतनी बेहतर है नहीं। जितने बेहतर हम हो सकते हैं आपस के रिश्तों में या सब चीज़ों में, उतने हम अच्छे हैं नहीं। ये ऐसा क्यों है, ये इनकी फिल्म थोड़ा जताती थी। तो मैंने तो बहुत सीखा है, मेरे तो गुरु हैं, दोस्त थे, मेंटर थे, बहुत कुछ थे, बहुत हंसमुख आदमी थे।
अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, इतने पढ़े लिखे थे, बट जिस तरह से आपसे वाकिफ़ होते थे, आपसे ऐसा लगता था कि वो एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है। श्याम बेनेगल के साथ ऐसा कभी नहीं होता था कि जैसे आपको कोई लेक्चर दे रहे हो, आप हमेशा ऐसा लगता था कि वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऐसा भ्रम दे देते थे हमको भी कि हमसे भी कुछ सीख रहे हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थी। हम तो चाहेंगे कि उनके थोड़ा आधा जैसे हो जाएं, और मैं तो आई मिस हिम। आई थिंक ही वाज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द फिल्म वर्ल्ड इन विच Shyam Benegal doesn't exist, because there is no such other person now in Bombay where we live. There is no other Shyam Benegal. So I mean, you could go to him and talk to him, and now he's not there. So I mean, I guess you have to keep seeing his films, and the best tribute to Shyam Benegal is go keep seeing his films. See Mammo, see Hari Bari, not the obvious films also. See Suraj Ka Saatwaं Ghoda. I'm not talking about the Ankur, Nishan, Mandi, Kalyug, Bhumika, which is outstanding. I see Bhumika every 3 months or so. अब शाम ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर चुके हैं या करना चाहते थे, वो सब मौजूद थे और सब ने अपनी अपनी बातें कही। श्याम बेनेगल साहब से मेरा भी एक रिश्ता रहा है, न सिर्फ पर्सनल लेवल पे, बल्कि मैंने उनकी 3 फिल्मों में गाने लिखे हैं। उनकी फिल्मों में गाने तो आमतौर से नहीं होते थे, लेकिन जब थे जैसे सरदारी बेगम, तो वो तो एक सिंगर का ही मेन कैरेक्टर था, तो उसमें तो गीत होने ही थे। तो आई एम ऑनर्ड कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझसे वो लिखवाए। उसके बाद ज़ुबैदा में मैंने लिखा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फॉरगॉटन हीरो, ये 3 फिल्में हैं जिसमें मैंने उनके लिए। मुझे तो उनकी फिल्म पहली ही अंकुर ही पसंद आई थी, निशांत है, मंथन है, ये सब कमाल की फिल्में थी। और जब ये आई थी तो हमने तो हिंदी में ऐसी फिल्में देखी ही नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि शमाना और मेरी दोस्ती में अंकुर का बहुत हाथ रहा। अंकुर में जब मैंने उसे देखा, ऐसे तो मैं उसे हमेशा से जानता था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए इज्जत अंकुर देख के पैदा हुई थी। श्याम बेनेगल साहब से बहुत अच्छा हमारा हमेशा रिलेशन रहा, और राइटिंग लिरिक्स फॉर हिम वाज एन एक्सपीरियंस, बिकॉज ही वांटेड ऑथेंटिक लिरिक्स, जैसे कि उस ज़माने में सरदारी बेगम के ज़माने में गाए जाते थे, ठुमरियाँ, कजरियाँ, ये सब वो था। तो वो एक अजीब एक्सपीरियंस था, अलग तरह का उनके साथ काम करने का। और व्हाट अ जेंटलमैन ही वाज। अब मैं समझता हूँ बहुत लड़कियां हैं जो अब फिल्में बहुत अच्छी भी बना रहे हैं। जैसे एक फिल्म थी मसान, बहुत अच्छी पिक्चर थी। जैसे अभी एक रीमा काकटी ने एक फिल्म बनाई है, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, बहुत अच्छी पिक्चर है। तो ऐसी पिक्चर, एक पिक्चर थी उड़ान। तो ये सब जो है, इस तरह की फिल्में तो पहले श्याम बेनेगल से पहले तो बनती नहीं थी। ये दरअसल मैं तो इसे कहूँगा कि ये श्याम बेनेगल घराना है। तो जो ये फिल्में बना रहा है और बनाएंगे, बन रही हैं, ऐसा नहीं। हमारी तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि, उनकी यादों को हमेशा जिंदा रखेंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।